So hello friends, today we are going to deal with one of the very important chapter of chemistry, that is GOC, General Organic Chemistry. In this chapter there are some important topics to deal with are hybridization, reaction mechanism, atomicity, transition state, intermediates, resonance and so on. First of all, we should know what is an organic reaction. The reaction in which breakage of old covalent bond and the formation of new covalent bonds occur is known as organic reaction. First of all, what is covalent bond? Covalent bond means the bond between two nonmetals is known as covalent bond. In this bond, two nonmetals share their electron with each other. For example, CH4. In this, carbon is also a nonmetal and hydrogen is also a nonmetal. Between carbon and hydrogen, the bond created is known as covalent bond. See. Carbon has 4 valence electron in its outermost shell and hydrogen 1. In every reaction, hydrogen tries to complete its duet, and except hydrogen, all atoms try to complete its octet. Here, hydrogen have 1 bond, carbon have 4 bonds. Hydrogen have 1 electron in its outermost shell, and carbon has 4. See, the 4 electrons by carbon are being shared with 4 hydrogen atoms, and 1 bond of hydrogen is shared with 1 electron of hydrogen is shared with carbon. If we would go to count down the number of electrons in this, we would say that carbon with respect to carbon, we see carbon has 4 bonds of its own, 4 electron of its own, and 4 electrons are shared by hydrogen. Then we should count, then 4 plus 4 equals to 8 electrons. Now for hydrogen, in case of hydrogen, one hydrogen contains 1 electron, and one of the electron is shared by carbon to each hydrogen. So hydrogen in this case have 1 of its own and 1 of carbon, 2 electrons. This sharing of electrons, this sharing of electrons is known as covalent bond. The bond formed by sharing of electrons by 2 atoms or more than 2 atoms is known as covalent bond. If you want to write that, you can write, but this statement, the bond between two nonmetals is known as covalent bond, is enough for recognizing, or you should or mentioned as a trick also, that if many question comes that what is ionic bond, what is covalent bond, what is non-metallic bond, earlier chapter, in later chapters, you will definitely find these differences that and questions that what is non covalent bond, ionic bond. Ionic bond is that the bond between you can identify by its name only, that the bond between negative and positive
charged elements. Then what can be it, in between which type of elements this bond should be present? Then ionic bond is present between metal and non-metal. For example, we take sodium chloride. In sodium chloride, sodium is a metal and chloride is a non-metal. On sodium it is a positive charge, and chlorine ion it is a negative charge. So the bond formed between these two elements, these two elements is known as ionic bond. So later, moving on this chapter, we know in the organic reaction the cleavage of old bonds and formation of new bonds is known as organic reaction. For example, we take a reaction. Let us consider a reaction of methane and chloride, that is in organic term this reaction is termed as free radical. See, take CH4 plus Cl2 in the presence of H mu, it forms CH3Cl plus HCl. Here we see a compound methane have covalent bond between their atoms, plus a compound chlorine have also covalent bond between these two between their elements. So here we see, for formation of CS3Cl and HCl, there must be the breakage of any of the bond between these two elements. First of all, here chlorine will break. There will be breakage in chlorine atom, and here one of the hydrogen atom would be breaked. This breaking, and after breaking, this carbon contains a positive charge, as here electrons were shared, and after breaking the electron would be taken out by HCl. So carbon contains a positive charge, and chlorine, one of the chlorine is also breaked. Both chlorines are breaked. The new bond formed by Cl minus, and one Cl minus is still there. This hydrogen atom will attach with this chlorine, and this chlorine will goes to the carbon atom with positive charge. So the element form is CH here plus Cl and H. Here the new bond formed between is between carbon and chlorine, and here the new bond formed is between carbon and hydrogen. First of all, the old bond between chlorine and carbon and hydrogen is break. Then the new bond is formed between carbon and chlorine and hydrogen. This simultaneous reaction is known as organic reaction. Now see, what is reaction mechanism? देखो, हर रिएक्शन को पूरा होने के लिए या हर रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस होता है. जैसे अगर हम कोई हर काम को करने के लिए इनफैक्ट प्रोसेस होता है. जैसे
अगर हमें कोई आलू की सब्ज़ी बनानी है तो पहले हम क्या करेंगे, आलू लेंगे, आलू को धोएंगे, फिर उसको छीलेंगे, उसको काटेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर जो कढ़ाई होती है जिसमें हम आलू बनाते हैं उसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे, फिर चूल्हे को जलाएंगे, फिर उसमें तेल डालेंगे, मिर्च डालेंगे, फिर कुछ और जो मन करे मतलब जो डालते हैं वो डालेंगे, उसके बाद आलू डालेंगे, उसको फ्राई करेंगे। तो आलू बनाने के लिए या आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए इतने सारे प्रोसेसेस हैं, तो एक रिएक्शन को होने के लिए भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। बिना प्रोसेस के कोई रिएक्शन हो नहीं सकता है। आलू की सब्ज़ी बनाना भी एक रिएक्शन ही है। उसमें फ़र्क ये है कि हम केमिस्ट्री के रिएक्शंस देख रहे हैं और वो होम साइंस में रिएक्शंस आ जाएंगे। तो यहाँ तो हम होम साइंस पढ़ नहीं रहे हैं कि उस आलू की सब्ज़ी को बनाने के लिए डिटेल में जाएं। यहाँ हमें केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। केमिस्ट्री के रिएक्शंस देखो, रिएक्शन मैकेनिज़्म में होता क्या है, हर रिएक्शन के लिए कोई ना कोई स्टेप होता है, या एक ही स्टेप हो या 2 स्टेप हो, उस स्टेप को मेंशन करना ही रिएक्शन मैकेनिज़्म कहलाता है। इसको इंग्लिश में हम अगर बोलें, मतलब डिफाइनिंग लैंग्वेज में अगर हम बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं रिएक्शन दैट The step-by-step description of a reaction is known as reaction mechanism. अब इसको हम लिख लेते हैं। Of the reaction is known as reaction mechanism. सी, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है A2 और दूसरा है B2। अब ये दोनों कंपाउंड मिलके 2AB बनाते हैं, सपोज दैट। तो ये A2 और B2 को ऐड करके जो न्यू कंपाउंड बनेगा, इन दोनों के बीच में जो प्रोसेस होंगे, इन स्टेप उनका डिस्क्रिप्शन, मतलब उन प्रोसेसेस को अगर हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, उसी को हम रिएक्शन मैकेनिज़्म कहते हैं। अब देखो, 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। ये A2A प्लस AA एक कंपाउंड है और BB, मतलब A2 और B2 कंपाउंड है, उसको हम बॉन्ड फॉर्म में लिख दिए हैं। इन दोनों को डिस्क्राइब करेंगे। एक इंटरमीडिएट फेज होता है, हर मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए डिफरेंट फेजेस होते हैं रिएक्शंस के। एक इंटरमीडिएट होता है और एक ट्रांजिशन होता है। इन दोनों में से कोई भी प्रोसेस इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व हो, कोई भी प्रोसेस इन्वॉल्व हो सकता है। तो AA और BB मीन्स A2 एंड B2 मिलके बनाते हैं 2AB। नाउ व्हाट इज इंटरमीडिएट फेज ऑफ रिएक्शन? सी, हर रिएक्शन को इन्वॉल्व होने के लिए बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना, ये 2 चीज़ ज़रूरी होता है। अब इंटरमीडिएट फेज़ में क्या होता है? इंटरमीडिएट फेज़ में 2 बॉन्ड्स, इट शुड बी A, 2 बॉन्ड्स पहले टूटेंगे, फिर नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा।
द बॉन्ड मतलब बॉन्ड जो एलिमेंट्स के बीच में जो बॉन्ड है वो पहले टूटेगा फिर जाके दूसरा बॉन्ड बनेगा। जैसे इसमें प्रोसेस शोन हो सकता है ऐसे कि द स्टेट वैसा सिचुएशन मतलब ऐसी स्थिति जो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद और बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले होती है किसी भी एलिमेंट की, उस सिचुएशन को डिफाइन करता है इंटरमीडिएट। फॉर एग्जांपल कार्बोकटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, एटसेट्रा। देखो कार्बोकटायन में क्या होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बो अनायन में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और फ्री रेडिकल में कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये सिचुएशन तभी आता है जब बॉन्ड अभी जस्ट टूटा है और ये बॉन्ड अभी न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है। बॉन्ड टूटने के बाद और न्यू बॉन्ड फॉर्म होने के पहले की सिचुएशन है ये एंड ये। जैसे कि अगर हम कोई रिएक्शन, जैसे यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन अगर हम लेते हैं ए प्लस बी, यहाँ पे बी के बीच में ब्रेकेज होगा, बी के बॉन्ड, फिर ए का बॉन्ड ब्रेकेज होगा। अब ये दोनों ब्रेकेज के बाद कंपाउंड क्या बनेगा, एक मान लीजिए हम फ्री रेडिकल ही लेते हैं क्योंकि सिमिलर कंपाउंड है ना, तो ए पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और इस ए पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इस ए पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, फिर इस बी पे भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री है एंड नेक्स्ट पे भी। ये सेकेंड स्टेप है। अभी बॉन्ड जस्ट ब्रेक हुआ है, बॉन्ड न्यू फॉर्म हुआ नहीं है। अब ये फ्री रेडिकल रिएक्ट करेगा आपस में, तो न्यू बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो ऐसे ए और बी के बीच में 2A और B बनेगा। जैसे अगर हम ऐसे ही लिख देते हैं 2A एंड B, और A एंड B के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे ब्रेकेज हुआ बॉन्ड का और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। इस बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में जो एलिमेंट का स्टेट रहा उसी को इंटरमीडिएट स्टेट डिफाइन करता है। इतना तो हम समझ गए। अब आगे चलते हैं, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट। सी ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसे भी हैं जिसमें जस्ट बॉन्ड ब्रेक हुआ और जस्ट बॉन्ड फॉर्म हो गया। मीन्स इन दोनों प्रोसेसेस के बीच में जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो फॉर्म ही नहीं हो पाता है। मीन्स एकदम साइमल्टेनियस रिएक्शन हो जाता है वो। जैसे कि अगर हम कोई एग्जांपल ले लें, मीन्स इस स्टेट में ऐसे समझे कि दोनों प्रोसेसेस के बीच में जो कंपाउंड फॉर्म होना था वो फॉर्म नहीं हुआ। ऐसे यहाँ हम ट्रांजिशन स्टेट फिर से समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, इसमें ऐसे समझें कि ये दोनों ये जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब बॉन्ड ब्रेकेज और बॉन्ड फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके बीच वाला जो कंपाउंड फॉर्म होना था इस स्टेट में नहीं हो पाता है। मीन्स इस स्टेट में कि अगर हम कोई कंपाउंड लें ए और ए, बी मतलब A2B2, तो यहाँ पे पहले ए के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना था और बी के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना था, फिर ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म होना था। बट यहाँ क्या होता है कि ए और ए के बीच का जो बॉन्ड है वो अभी टूट ही रहा होता है। मीन्स ये जो बॉन्ड है ये टूट ही रहा होता है, तभी
ए और बी के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे ये जो कंपाउंड बनना था वो नहीं बन पाता है, एकदम साइमल्टेनियस हो जाता है प्रोसेस, मतलब एक अभी ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा स्टार्ट ही हो गया, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन। मतलब अगर हम इसको डिफाइन करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, द साइमल्टेनियस प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेट। स्टेट ऑफ रिएक्शंस तो हमने डिफाइन कर, आते हैं हम मेन